Okay, guys, let's come to this next one. Electric pressure. Okay, this is one additional theory. Sometimes this type of question is asked in a JEE examination. Okay, so additional theory, and it is useful for the JEE examination. Let me solve this. Means we understand this theory. What is the electric pressure first? And on a charged conducting surface. What is the meaning of conducting? Means metal surface. You consider any conducting body, means metal body, then some electric pressure is created. How? Let me understand. Suppose you consider this is the one charged body. इसको आप charged body ले लो, ठीक है? Now you are just supplied some charge to this body. So as we know, if this body is conducting, so charge is only distribute over the surface. Charge is only distribute over the surface. So on this surface you consider the small section. आपने ऐसा कोई section लिया. So this section having some charge. This section having some charge. Let's consider some small charge dq. इस section पे कितना charge है? dq है. And this section area, consider area is equal to what? dA. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ फोर्स लगेगा. As we know, thus if we have a now after putting this charge, the charge is coming to rest on the surface of a conductor. So this rest charge is produce some repulsive force on the other charges. So due to this repulsive force, some pressure is created on the surface of this body called electric pressure. So pressure due to the repulsion force between the charge means over the charge, this pressure is created. We call it is electric pressure. So what is electric pressure actually? Due to the repulsion force between charges on surface of a conductor, due to the repulsion force between the charges over the surface, pressure is created on a surface of conductor called, we just called it as इलेक्ट्रिक प्रेशर. इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है जनरली? हाउ वी जस्ट गिव्स इलेक्ट्रिक प्रेशर इज जनरली, लेट्स वी कंसीडर इट सपोज P इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो इसका फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा ही रहता है प्रेशर का फॉर्मूला. तो यहाँ पे स्मॉल सेक्शन काउंट किया है, तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि प्रेशर इज इक्वल टू dF अपॉन dA. प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे ले लो, प्रेशर इज इक्वल टू dF अपॉन dA. तो इफ द चार्ज डेंसिटी ऑन द surface is considered sigma, charge density is a what? Sigma. Here consider charge density sigma is equal to what actually? dq अपॉन dA. ऐसा दे सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर dA है. तो फिर dq क्या हो जाएगा इसमें से? dq is equal to sigma dA. dq क्या अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिग्मा इंटू डी. हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है? तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअली, सो लेट्स सी, इस पे कितना चार्ज है? dq है यहाँ. और एज वी डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको आप मान लो xy, इसको आप मान लो xy xz y. तो दो सेक्शन हुए, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही रहता है. लेकिन आप अगर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट काउंट करते हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना रहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. लेकिन वो E क्या है? लेट्स वी जस्ट राइट डाउन व्हाट इज दिस E एक्चुअली. सो टोटल field outside the, actually just
outside the surface, then E is equal to sigma upon epsilon naught is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज. ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज ऐसे देना है, ठीक है. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स वाई सेक्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स जेड वाई सेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स जेड वाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं. और लास्ट सेशन में मैं देखा था ये दोनों सेम है, लास्ट सेशन में ऐसे सीखा था कि दोनों की है सेम है. तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि फोर्स इतने सेक्शन पे लग रहा है तो इसका चार्ज और बाकी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा डीएफ, ये डीएफ कितना होगा, यहाँ इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड n2 इस सेक्शन का चार्ज, मतलब एक्स वाई का चार्ज एंड दिस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और दोनों सेम है. तो ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स जेड वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये लास्ट सेशन में लिखा था दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर हो जाएगा dF इज इक्वल टू इस सेक्शन का चार्ज, मतलब कि क्यू एक्स वाई सेक्शन का चार्ज इनटू बाकी के सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो ई एक्स जेड वाई अपॉन डी ए. ऐसा हो जाएगा, सभी वैल्यू रख दो. तो क्यू एक्स वाई कितना है डी क्यू, तो ये हो गया डी क्यू इंटू ई एक्स जेड वाई कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन डी ए, अपॉन डी ए. इसका सिंप्लीफाई करो चलो. तो डी क्यू तो फाइंड किया हुआ है, देखो व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए. व्हाट इज डी क्यू, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए मीन्स व्हाट सिग्मा. तो इसकी जगह पे सिग्मा रख दो. तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज सिग्मा, दिस वन, एंड डी क्यू अपॉन डी ए मीन्स व्हाट अगेन सिग्मा. तो सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. रीजन इज व्हाट हियर डी क्यू अपॉन डी ए इज इक्वल टू सिग्मा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर. आप इस इक्वेशन में से सिग्मा भी काउंट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे सिग्मा रख दो तो एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा. तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई. सो अनदर इक्वेशन और इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. सो एप्सिलॉन नॉट इज कम्स हियर, सो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टाइम, तो कैंसिल हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस 2 मीन्स 1/2, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर. इस अनदर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ई क्या है वही समझना है. ई इज अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, नॉट ड्यू टू दिस पार्ट. E does not have the part electric field due to this part section, means small section. Okay, so here E is a sigma upon epsilon naught electric field just outside the surface, electric field just outside the surface due to whole charge. मतलब टोटल है तो टोटल चार्ज लेना पड़ेगा, होल चार्ज वॉट एवर यू पुट ऑन द सर्फेस. Okay, so we have this 2 equation of electric pressure, this one or this one, both are same, and you just using the any one of this equation. Okay, so when the question is asking to you find the electric pressure, use this equation directly. आप ये इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है. कोई अलग से कोई इक्वेशन यूज नहीं करना, आप डिराइव भी नहीं करना है, इक्वेशन याद रख लो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है. तो थियोरी अपनी बुक्स में नोट कर लो. ओके गाइस, लेट्स कम टू द सेम थ्योरी, इलेक्ट्रिक प्रेशर. सेम थ्योरी है लेकिन डिफरेंट है. ऑन चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज सरफेस ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, सेम इक्वेशन, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एफ, फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे कोई स्मॉल सेक्शनल एरिया ले लो ऐसे,
ओके, इसका एरिया है डी है एंड चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है। वहां पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो ऐसा मान के यहाँ पे चलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्चुअली तो ऐसा है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक जो है वो पैरेलल, एक जो है वो परपेंडिकुलर। तो प्रेशर में तो परपेंडिकुलर फोर्स ही काउंट करते हैं ऐसे सरफेस को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर इनटू डी क्यू, मीन्स क्यू ई लिखा मैंने, ठीक है, उसका चार्ज अपॉन डी ए। व्हाट इज डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए इज अ सिग्मा, सो इलेक्ट्रिक प्रेशर फॉर द एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन लाइक दिस, सिग्मा इनटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको ले लेना है। अगर सिग्मा पता है तो यहाँ पे रख दो इस तरह से, हाँ सिंपल है। यू जस्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक प्रेशर इन द एक्सटर्नल फील्ड बाय दिस, ओके। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस थ्योरी, यू टेक अ परपेंडिकुलर कंपाउंड, क्योंकि पैरेलल कंपाउंड से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, as we studied during fluid dynamics, okay. So similar concept applied here. Note this theory in your books. Okay guys, let's come to this next important theory, and you just write it is additional one. Okay, what is this self energy of a charged body? So first of all, what is the meaning of self energy? सेल्फ एनर्जी मीन्स वर्क रिक्वायर्ड टू चार्जिंग अ बॉडी, मतलब कि कोई बॉडी को आप चार्ज करना चाहते हैं, मतलब कोई बॉडी पे आप चार्ज रखते हो तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी, उसको क्या बोलते हैं, द सेल्फ एनर्जी। व्हाट वी कॉल इट इज सेल्फ एनर्जी। इसको फील्ड एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज हियर द वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग इज अगेंस्ट द फील्ड. So due to this one, some charge is you just put some charge on this body and some electric field is produced by this. Okay, so इसको मतलब सेल्फ एनर्जी को हम फील्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। सो फील्ड एनर्जी, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी है वो फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी, this energy stored in the form of field, so we call it is field energy, this type of case. Okay, so this energy, whatever you are doing a work, whatever you are doing a work, this work is stored in the form of field energy. जो भी आप वर्क करते हो वो किसके फॉर्म में स्टोर होने वाला है, फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आप स्फीयर लेते हो तो उसके सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट्स इन द सराउंडिंग देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, सो वी कॉल इट इज फील्ड एनर्जी। ओके, सो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, सो लेट्स कंसिडर you have a one body, you consider this is a one body, okay, and you just put some charge from infinite, you just consider some charge is put on the body from infinity to the body, and how much charge is put here, q or dq. Suppose you just put small charges, you put small charges dq, so how much is work is required to for this dq charge? So small work dw is equal to v into dq, actually qv, work is equal to what, qv, so v into dq, ओके, क्योंकि dq चार्जर का, तो टोटल वर्क कितना रहेगा, सो टोटल वर्क डन W इज नथिंग, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन v dq। तो आप इस इक्वेशन से टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ वन इंपॉर्टेंट नॉट फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल को आप कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर इज एग्जैक्टली बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल शेल, सो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब वेरी सिंपल, लेट्स कंसीडर, सपोज दिस इज द स्फीयर एंड हाउ मच इट्स रेडियस r, how much is radius r, right now you just consider this is the infinite region of electric field, region of electric field, that's a infinity, you put some
initially suppose how much charge is present, q charge is present on this sphere. Now you just put some charge on this is how much, dq. मतलब आप स्फेरिकल शेल पे टोटल कितना चार्ज प्लेस करना चाहते हैं, सपोज कैपिटल क्यू प्लेस करना चाहते हो, मतलब आपको यहाँ पे इतना चार्ज प्लेस करना है, तो टोटल कितना वर्क डन रहेगा. तो इनिशियली ये चार्ज कितना था, क्यू इनिशियल कितना था 0, उससे आपने कितना कर दिया क्यू फाइनल, क्यू तक सपोज किया, तो इतना चार्ज इस पे प्लेस करने के लिए जितना वर्क रहेगा, मतलब हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्लेस दिस मच ऑफ चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल हैविंग सम रेडियस आर, इट्स कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस शेल. ओके, तो इक्वेशन तो सिंपल ही है, तो इक्वेशन में वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हो. तो टोटल वर्क डन U is equal to W is equal to इंटीग्रेशन V dq. यही इक्वेशन से आपको सॉल्व करना, ठीक है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, सो k q by r, सो पुट दिस वैल्यू, सो इंटीग्रेशन k q by r into dq. व्हाट इज द लिमिट, इनिशियली 0 था, कितना फाइनल प्लेस करना है q, तो लिमिट रख दो यहाँ पे 0 से q, ठीक है. तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क रिक्वायर्ड, तो k and r just coming out from the integration, so k upon r, q dq. So use the power rule. What is the power of q? 1. So in case of integration, one power is increases and new power comes into the denominator. So यहाँ पे q का 1 power था, तो वो increase होके कितना हो गया 2. The new power is comes in the denominator, so divided by 2. What is the limit, 0 to q, तो यहाँ पे रख दो 0 to q. So if you just put q here, then q square by 2, 0 रखोगे तो 0 आएगा. तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, w और द सेल्फ एनर्जी u इज इक्वल टू k कैपिटल q स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू r. सो k q स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू r. दिस इज अवर आंसर. So by this way you just find the answer of work self energy, and we have one simple equation V dq. इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है. मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो. सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. स्फेरिकल शेल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाट इज आंसर, के क्यू अपॉन 2r. इसमें के की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सो 4 इंटू 2 8, सो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 मीन्स व्हाट 0.5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r. So this is the self energy of a spherical shell. Similarly, you can derive this second relation, uniformly charged solid sphere. So U is equal to, इसका इक्वेशन आप ऐसे फाइंड करोगे तो क्या आएगा 3kq स्क्वायर अपॉन 5r और 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r. मतलब k की जगह पर रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका आप काउंट करोगे तो 3 अपॉन 5 0.6. तो ईजी है याद रखने में. देखो, यू मस्ट बी रिमेंबर बाय दिस वे. इसमें क्या रहता है 0.5, यहाँ पे 0.6 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, ठीक है. सो इस इक्वेशन का यूज करके कभी कभी जेडब्ल्यू में इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू स्फीयर, ऑफ अ सिस्टम ऑफ two sphere. Up to this lecture we discuss about the system of charges. Now we discuss about the system of two sphere. Let's consider that is a sphere 1. This one is a sphere 1 having some radius r1. Okay, and you just consider here some sphere 2 having a radius r2. The distance between the two sphere is r. Consider small r is much greater than r1 and r2. Okay, so and you just put some charge q1 on the first sphere, you just put some charge q2 on the second sphere. So what is the total potential energy? So total potential energy of the system U is equal to self energy of the first one, self energy of the first sphere, plus self energy of the second sphere, so self energy of the second sphere, plus interaction energy between the two sphere. It means U1 to, ये तो इक्वेशन पता ही है. तो सेल्फ एनर्जी स्फीयर की कितनी लिखी है यहाँ पे देखो 3kq स्क्वायर अपॉन 5r. सो U इज इक्वल टू 3k q स्क्वायर. तो यहाँ पे q कितना है q1, सो इनटू q1 स्क्वायर अपॉन 5r.
सो 5 आर कितना है R1 तो 5R1 प्लस सेकेंड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी सेम इक्वेशन 3kq लेकिन चार्ज कितना रखना है Q2 सो चार्ज इज Q2 स्क्वायर अपॉन 5R2 प्लस व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज सिंपल K Q2 upon R12 what is the distance between R2 sphere R so R12 is equal to what R so this one is given as a total potential energy of the system okay spherical shell की भी find कर सकते हो ऐसे if you want to finding out the total potential of the spherical shell you also using the same concept okay so self energy first plus self energy second plus interaction energy को QV भी बोल सकते डायरेक्टली U1 तो क्या लिख सकते हो Q V लेकिन अगर यहाँ पे Q1 रखते हो तो V2 रखना है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q2 बोलते हो तो V1 रखना है ठीक है इक्वेशन ऐसे ही डिराइव किया हुआ है so this is our answer okay so all of you guys note down this full theory and example in your books